So first of all, कहते that is laws of exponential exponents for real numbers. So first, do you remember how to simplify the following? So first is 17 का square into 17 power 5. Second is 5 by power 2 bracket close into 7 times. And third is 23rd by power 10 divided by 23rd by power 7 is equal to what? Fourth, 7 by power 3 into 9 by power 3 is equal to what? So, कहते did you get these answers? They are as follows. So first is 17 by power 2 plus dot 17 by power 5 is equal to what? 17 by power 7. 5 का square into 7 times, that is 5 by power 14. And 23rd by power 10 divided by 23rd by power 7 is equal to 23rd by power 3. And कहते 7 by power 3 times into 9 by power 3 times, that is equal to 63 by power 3. So कहते to get मतलब कि to get these answers you would have used the following laws of exponents which you have learnt in your earlier classes. Here a, n and m are natural numbers. Remember, a is called the base and m is and n are exponents. That is first a पे पावर m डॉट a पे पावर n इज इक्वल टू a. दैट इज अगर किसी चीज़ पे पावर है तो अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो क्या हो जाते हैं? पावर प्लस हो जाते हैं, मतलब कि बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगा। ओके। और सेकंड केस क्या है कि अगर पावर क्या है, दैट इज अगर a पे पावर m इसके ऊपर फिर पावर है दैट इज a पे पावर n, तो क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई होते हैं, ये वही रहता है m n हो जाएगा। ओके, दैट विल गेट मल्टीप्लाइड। और अगर डिवीजन में हो दैट इज a पे पावर m अपॉन a पे पावर n, तो क्या हो जाता है? मतलब कि फिर पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, दैट इज a पे पावर m माइनस n। और कहते हैं फोर्थ केस अगर क्या हो, a पे पावर m हो b पे पावर, मतलब कि बेस दोनों अलग हो गए, पावर सेम है, तो जो ए बी है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सेम ही रहेगा। सो दिस इज द केस। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज ए पे पावर 0? सो यस इट इज़ 1, मतलब कि हमें पहले से ही पता है ये 1 ही होता है। सो यू हैव लर्न दैट ए पे एनीथिंग पे पावर 0 इज 1। सो यूजिंग थर्ड वी कैन गेट 1 अपॉन n, a पे 1 अपॉन a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर माइनस n। वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉज टू नेगेटिव एक्सपोनेंट्स टू। सो फॉर एग्जांपल कहते हैं 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 17 पावर माइनस 3, और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 पावर क्यूब। और सेकंड कहते हैं इफ दैट इज 5 का स्केयर पे पावर माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 5 पे पावर माइनस 14। थर्ड कहते हैं 23rd पे पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 23rd पावर 7, दैट इज इक्वल टू 23rd पे पावर माइनस 17। एंड फोर्थ कहते हैं 7 पे पावर माइनस 3 इंटू 9 पे पावर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 63 पे पावर माइनस 3। कहते हैं सपोज वी वांट टू डिटरमाइन द फॉलोइंग कंप्यूटेशंस। सो फर्स्ट कहते हैं 2 पे पावर 2 बाई थर्ड इंटू 2 पे पावर 1 बाई थर्ड, दैट इज मीन्स की बेस सेम है, so what powers will multiply? Base remains the same, that becomes 2 by 9 for this case. Okay, and कहते हैं अगर second that is 3 पे power 1 by 5 into 4, so simply what power is multiplied, that becomes 4 by 5। and for this case that is 7 पे power 1 by 5 divided by 7 power 1 by 3, so base remains the same and the powers get it subtracted, so 1 by 5 minus 1 by 3, that is the answer। and fourth कहते this means powers are same, base are different, so bases get multiplied and the power remains the same। so कहते here how would you go about it? It turns out that we can extend the laws of exponents
that we have studied earlier. Even when the base is a positive real number and the exponents are real rational numbers, later you will study that it is can further to be extended when the exponents are real numbers. But before we state these laws, and to even make sense of these laws, we need to first understand what, for example, 4 to the power 3 by 2 is. So we have some work to do. So first कहते हैं in section 1.4 we defined that is means कि मतलब कि under root of n power that is a for a real number a greater than 0 as follows. तो कहते हैं let a is be greater than 0 be a real number and n a positive integer. then क्या कहते हैं n मतलब कि that is n root of a is equal to b. कहते if क्या होगा b पे पावर n is equal to a and b is greater than 0. so कहते that is तो कहते in the language of exponents we defined n root of a is equal to a पे power 1 by n. so in particular cube root of 2 under root 2 is equal to 2 is equal to 1 by 3. so there are now two ways to look at 4 पे power 3 by 2. so two ways to look at this, that is equal to 4 पे power 3 by 2 is equal to 4 पे power 1 by 2 into cube that is equal to 2 का cube is equal to 8. और क्या कहते हैं 4 का पावर 3 by 2 is equal to 4 पे पावर क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट that is equal to 64 का अंडर रूट 8. so therefore we have the following definition. तो कहते हैं let a greater than 0 be a real number, let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n is greater than 0. then क्या कहते हैं a पे पावर m upon n is equal to n root of a पे पावर m is equal to n root of a पे पावर under n मतलब means कि now we have the following extended law of exponents. कहते let a be greater than 0 be a real number and p and q be a rational numbers. then we have first a पे power p, that is first case is this. अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे. अगर क्या है अगर पावर्स मल्टीप्लाइड में है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली. अगर कहते हैं अगर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, बेस सेम होना चाहिए. और अगर फोर्थ कहते हैं कि अगर ए पे पावर पी है इंटू बी पे पावर पी है तो क्या आ जाएगा पावर रिमेन्स द सेम, ए बी गेट मल्टीप्लाइड इंटू पी. कहते यू कैन राइट you can now use these laws to answer the questions asked earlier. so first question क्या है that is simplify 2 पे power 3 2 पे power 2 by 3 into 2 पे power 1 by 3 तो that comes out base remains the same, powers get what added that is equal to 3 that is 2 by 3 plus 1 by 3 that comes out to be 2 पे power 3 by 3 that is equal to 1. so that comes out 2 to the power 1 or 2 simply. and for second case that is get the 3, so power get multiplied that is 3 to power that is that becomes 3 to power 4 by 5. and for third case के लिए पावर क्या डिवीजन में है तो पावर क्या चाहिए सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा that is equal to 7 पे पावर 1 by 5 minus 1 by 3. so 1 by 5 minus 1 by 3 that comes out to be दोनों का एलसीएम ले लो that is equal to 15. ओके सो इधर हो जाएंगी 3 minus 5 that is equal to minus 2 by 15. so 7 पे पावर क्या आ जाएगी minus 2 by 15. and for fourth केस कहते हैं पावर गेट एडिट मीन्स की बेस सेम मतलब कि पावर सेम है सो बेस को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 13 इंटू 17. so that comes out to be our answer that is 221 पे पावर 1 by 5.
सो एक्सरसाइज 1.6 तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कहते फाइंड वन पे पावर 64 1/2। तो इसका आंसर क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू, देखो सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं कि 64 के फैक्टर्स ले लें सबसे पहले। तो अगर हम 64 के फैक्टर्स देखें तो पहले क्या है 2 3 2, ओके, देन फिर 2 1 6, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, देन 2 पावर 1 दैट इज इक्वल टू, इसके फैक्टर बनाए 1 2 3। तो ये क्या आ जाना है 2 का पावर क्या आ जाना है, या तो इसको अगर बनाना है तो दैट इज इसको अगर हम स्क्वायर रूट में बना लें तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि अंडर रूट में क्या है उधर अंडर रूट है, तो 3 के फैक्टर्स बना लें तो ये हो जाना है 8 का स्केयर, 2 2 4 4 2 का 8 इंटू 8, दैट बिकम्स 8 का स्केयर, 8 का स्केयर का अंडर रूट, दैट कम्स आउट टू बी आंसर 8। नेक्स्ट इस कहते हैं कि 32 पे पावर क्या है 1/5। तो ऐसे ही हमने क्या बनाना है 32 के फैक्टर्स बना लेने हैं फर्स्ट। सो 32 को फैक्टर्स बना के देखते हैं। सो लेट अस चेक इट। सो 32 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, तो पहले 2 दैट कम्स आउट टू बी 1 6, देन 2 8, देन 2 4, देन 2 2, देन 2 1। तो इसके हमें 5 इसके 1 1 मतलब कि 5 चाहिए डिफरेंट। तो ये 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 5, और क्या है पावर 1/5 है, इस पे ऊपर 1/5 है, तो 5 5 कट जाएंगे, जिसको कम्स आउट टू 2 पे पावर 1। सो दैट इज our answer. So that is our answer 2. And for third, so third is about 125 पे पावर 1/3। तो हम इसको, so let us check 125। so first write 125 as it, so first multiply by 5, तो 5 2 का 10, that is 5 का 25, and then 5, फिर 5 and then 5, so it comes out to be 5 का cube, okay, and when it is divided by 1/3, so it comes out to be 5, that is our answer। and कहते next कहते that is find, so कहते find first 9 पे पावर 3/2। सिमिलरली हमें इसकी ज़्यादातर हमें क्या एलसीएम से इट कैन बी सॉल्व। सो फर्स्ट हमें करना है क्या, दैट इज मेक फैक्टर्स ऑफ 9, दैट इज 3 का स्केयर, सिंपली है, नो नीड टू डू एलसीएम, दैट इज 3 का स्केयर। सो फिर वी रिटन इट एज इज 3 का स्केयर इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू दिस। सो अगर हम 3 का स्केयर लिख लें इंटू क्या था 3/2 था, दैट इज, सो 3 का स्केयर था दैट इज, तो हमने पहले 3 का स्केयर लिख लिया, उसके बाद पावर क्या थी 3/2 थी। सो ये 2 2 कट गया, दैट कम्स आउट टू बी 3 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 27। सो दैट इज द आंसर। एंड सेकेंड कहते फाइंड 32 पे पावर 2/5। सो फर्स्ट वी मेड इट वॉट 32 पे पावर 2/5 को हमने फैक्टर्स बना के मतलब कि इसको क्या लिख लिया, या फिर 1/5 को ले लिया, दैट इज, बट सिंपल है, आप क्या फैक्टर बना लो, वो ज़्यादा आपको आसान पड़ जाना, दैट इज नो नीड टू डू एनीथिंग। सो फर्स्ट मेक इफ व्हेन यू डोंट नो मेक फैक्टर। सो मेक फैक्टर ऑफ 32, व्हाट डू यू गेट। सो 32 के फैक्टर बनाए तो पहले फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, सो दैट कम्स 1 6, देन 2, देन 8, देन 2, देन 4, then 2, then 2, then 2, then 1, so it comes out to be 2 पे पावर 5। सो 2 पे पावर 5 आ गया। सो फर्स्ट क्या करेंगे, लेकिन 2 पे पावर 5,
और इसमें क्या था, इसके ऊपर क्या था, 2/5 था, ये 5 कट गए, दैट कम्स आउट टू बी 2 का स्केयर, और 2 का स्केयर क्या आता है 4. सो दैट इज आवर आंसर फॉर व्हाट, फॉर सेकंड क्वेश्चन. उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा. सो इस तरह से हम कोई भी सम कर सकते हैं. दैट कम्स आउट टू बी, सेकंड का क्या आया, 4 आया आंसर. और कहते थर्ड केस के लिए कहते, तो थर्ड केस क्या है, 1/60, मतलब 16^3/4 है. सो फर्स्ट सिंपली मेक व्हाट फैक्टर्स, 16 के फैक्टर्स बनाओ. दैट कम्स आउट टू बी 16 के फैक्टर्स बनाओ. तो पहले 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1. सो कितने 2 पे पावर 4 आ गया. सो 4 से 4 पावर कट जाए नहीं है, दैट मतलब कि रह जाएगा क्या, क्यूब. तो 2 का क्यूब क्या होगा 8. ऐसे ही फोर्थ को कह सकते हैं, दैट इज फोर्थ को फैक्टर बनाया. सो इसको कम आ जाना है, दैट कम्स आउट टू बी 5 का क्यूब आ जाएगा. 5 का क्यूब इंटू 1/3, तो 3 कट जाना है, दैट 1/5 कम्स आउट टू बी आंसर, और आंसर. सो सिमिलरली कहते हैं दैट इज की, अब में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो कहते हैं सिंप्लीफाई फर्स्ट 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5. सो क्या होगी, पावर्स क्या होगी, प्लस हो जाएंगी, दैट इज आवर आंसर. सेकंड में कहते हैं 1/3 पावर क्यूब है इंटू 7. सो पावर्स क्या करेंगे, पावर्स गेट मल्टीप्लाइड. ओके, इसको हम नीचे ले गए, दैट इज 3^-3 इंटू 7, दैट इज -3^-21 आंसर. एंड से इसके कहते हैं पावर्स, मतलब कि पावर्स माइनस सब्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, एंड इसमें क्या हो जाएंगे, दैट इज बेस मल्टीप्लाइड हो जाएंगे. तो 7 का स्केयर इंटू 8 का स्केयर, दैट इज 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64. सो दैट मीन्स नो, that is 7 or into 8 56, or power remains the same. So that is the answer.